Dear students, today we are going to talk about chapter number first of history from class 9th, and this chapter is very important because it will let us know that from where the terms like freedom, okay, the terms like freedom, equality, okay, equality and liberty came, okay. So in this chapter we will also talk about the new system of governance that will be the democracy, okay, that will be democracy, a system of governance in which peoples are the rulers, okay, peoples of the rulers, democracy stands for rule of people, okay. And here it is the society based on the principle of equality among all, okay. So this chapter is very important for all of us. So let's have a look over this chapter, that is the French Revolution, okay. So let us proceed. Say here, dear students, you should know that what is the revolution first. सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिवोल्यूशन क्या है. Then after we will proceed to the chapter. So revolution revolution stands for an protest, you can say, protest oblique demonstration regarding a demand regarding a demand are opposed, okay, are opposed, that is beneficial for the growth, that is beneficial for growth and welfare of the society, okay. रिवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? रिवोल्यूशन एक तरह का धरना प्रदर्शन हो सकता है, ठीक है, धरना हो सकता है या प्रदर्शन हो सकता है, विरोध हो सकता है, ठीक है, किसके लिए? किसी मांग को लेकर के, ठीक है, कोई मांग हो सकती है लोगों की, या फिर कोई विरोध हो सकता है लोगों का, जिससे कि उनके समाज का क्या हो, विकास हो और साथ ही साथ में उनका कल्याण हो, ओके। सो इसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं और ये मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर होता है. द मास ऑफ द पीपल participate in this type of protest or demonstration against the state, okay, against the state. Once more, what is the sense of revolution? So here revolution stands for a demonstration or protest, okay, a demonstration, you can say demonstration, you will write also demonstration oblique protest against the state, against the state regarding a demand or oppose, regarding a demand or oppose, regarding a demand or oppose by the mass of the people, okay, mass of the people, okay. सो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक प्रदर्शन हो सकता है या एक विरोध हो सकता है स्टेट के खिलाफ में, ओके. स्टेट मीन्स द रूलिंग बॉडी, ओके, द रूलिंग बॉडी, ओके. स्टेट मीन्स द रूलिंग बॉडी. तो ये क्या है? रिवॉल्यूशन क्या है? एक तरह का विरोध या प्रदर्शन हो सकता है सरकार के खिलाफ में, यानी स्टेट के खिलाफ में. किसको लेकर के? रिगार्डिंग अ डिमांड, ठीक है, किसी मांग को लेकर के, या फिर कोई विरोध, किसी भी विरोध को लेकर के, ठीक है, मास ऑफ द पीपल के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ में किसके लिए? एंड दैट इज necessary for the growth and the welfare of the society,
ग्रोथ एंड द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, सो ये हो गया आपके रिवॉल्यूशन का मतलब। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, दिस इज द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स इट मे बी देयर a revolution in France regarding to the growth and welfare of the society. So let's have a look over the incident and the occurring that had taken place in France at that time, and that led to the beginning of the ideas of freedom, equality and liberty. Okay, freedom, liberty and equality. Okay, सो फ्रांस में क्या होता है कि कोई एक ऐसी घटना होती है जिसके साथ में ये तीनों शब्द, जिसको आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, हम हमेशा इसके बारे में सुनते हैं, फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो हम बात करेंगे कि ये कैसे फ्रांस में ये शुरू होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो आई वॉन्ट टू टेल यू हियर आई वॉन्ट टू टेल यू हियर दैट by the French Revolution, the monarchy, okay, monarchy, a system of governance, okay, where king is the supreme, okay, where king is the supreme power of the state, okay. So this revolution led to the end of monarchy in France, okay. हमें इस चैप्टर में क्या बात करनी है, देखिए सबसे पहले हमने बताया रिवोल्यूशन क्या है, देन आफ्टर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में। ये शब्द आए कहाँ से, ये शुरू कहाँ से होते हैं, इनका क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सब होता कहाँ से है, फ्रांस में एक रिवोल्यूशन होता है। ओके, इन फ्रांस देयर अकर्ड अ रिवोल्यूशन, ओके, एंड इट लेड टू द एंड ऑफ, ओके, it led to the end of monarchy in France. Monarchy, monarchy, a system of governance. Okay, a system of governance means कहीं पर शासन करने का एक तरीका। ओके, तो ये मोनार्की होती है। मोनार्की में होता क्या है कि किंग इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। ओके, मीन्स ऑल द पावर्स, दैट इज द जुडिशियल, ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ओके, एवरी पावर, his power is being concentrated in the hands of the king. Okay, that means the monarchy. So the revolution led to the end of monarchy in France, and it also led the initiation of freedom, liberty and equality. Okay, now moving towards the next here. A society based on privileges gave a new system of governance. Okay, privilege का मतलब क्या होता है, मीन्स सम ऑफ द राइट्स आर गिवन टू समवन बाय बर्थ। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उनको जन्म से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्रिविलेज बोलते हैं। इसको हम हिंदी में विशेषाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, विशेषाधिकार। ओके, विशेषाधिकार, इसका मतलब ये हुआ दे दैट पर्टिकुलर पर्सन आर इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ पीपल आर कम्युनिटी has been given some special rights by the birth. Okay, and there in France also the revolution led to the declaration of rights of man. Okay, declaration of rights of man, okay, राइट्स जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं आज के डेट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है। आई हैव टोल्ड यू इन सिविक्स। ओके, सो वहाँ पर क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स होता है उस रिवोल्यूशन के ड्यूरिंग में, एंड ऑल्सो इट वॉज अनाउंस दैट द कमिंग ऑफ न्यू टाइम। ठीक है, और इस रिवोल्यूशन के साथ में ही एक नए युग की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ से जो एक 18वीं शताब्दी थी, 18th सेंचुरी थी, वहाँ से एक न्यू एज, न्यू टाइम की शुरुआत होती है। ओके, then after the idea that all individuals had rights, okay, that we call the fundamental rights, the idea that all individuals had rights and could claim for equality become a part of new age of politics. okay, तो ये जो नई राजनीति थी, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूँ। देखिए, फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है और उस रिवॉल्यूशन से क्या होता है कि वहाँ पर इक्वालिटी, ठीक है, जिसको इक्वालिटी, साथ ही साथ में फ्रीडम,
ओके, फ्रीडम और लिबर्टी, ये तीन टर्म उस रिवॉल्यूशन से इनिशिएट होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनका बर्थ होता है। ओके, फ्रीडम और लिबर्टी ये तीन टर्म वहाँ से शुरू होते हैं और एक नए युग की शुरुआत होती है। मोनर्की वहाँ से ख़त्म हो जाती है। मोनर्की का मतलब जो राजतंत्र होता है, इसको हिंदी में राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, राजतंत्र। राजतंत्र का तात्पर्य ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर राजा का शासन हो उसको हम राजतंत्र बोलते हैं। सिमिलरली प्रजातंत्र होता है, डेमोक्रेसी इसको हम बोलते हैं। डेमोक्रेसी जो आज के अप्रोक्सीमेटली 60% कंट्रीज़ में है। ठीक है, 60 to 70% कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। तो ये डेमोक्रेसी शुरू होती है, इसको हम प्रजातंत्र बोलते हैं। तो मोनार्की वहाँ से खत्म हो जाती है। ठीक है, इस रिवॉल्यूशन से, ये क्रांति से। अभी हम बात करेंगे कि वो क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और क्या क्या उसमें होता है, हम वो सारी बात करेंगे। अभी हम इस चैप्टर के प्रीफेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो दैट वहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक आइडिया जो लोगों को मीन्स राइट्स देने की बात होती है। ओके, द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल हैड द राइट्स एंड कुड क्लेम फॉर इक्वलिटी बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति की एक नई भाषा बन चुकी थी कि लोगों के पास में उनके अधिकार होते हैं और उनको बराबरी का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट थिंग, द नोशन ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम इमर्ज्ड एज द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ न्यू एज। ओके, इस नए युग में ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु थे, केंद्र बिंदु थे। मीन्स द होल पॉलिटिक्स वॉज confined to these two terms that were the equality and freedom. Okay, but in different countries they were reinterpreted and rethought. ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये दोनों उस समय की केंद्र भूमिका में तो थे। ठीक है, दे वर इन द सेंट्रल ideas, but their interpretation and they were reinterpreted and rethought in different ways in the different countries. ठीक है, अलग अलग देशों में इनकी अलग अलग व्याख्या की गई, इनको अलग अलग विचार दिया गया, इन पर अलग अलग के रवैये अपनाए गए। ओके, द नेक्स्ट थिंग, इन द एंटी कॉलोनियल मोमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस्ड आइडियाज़ दैट वर इनोवेटिव एंड ओरिजिनल। ठीक है, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, अब मैं आपको पहले से ये बता दूं कि कॉलोनी क्या होती है, व्हाट इज़ कॉलोनी, देन आफ्टर आई विल टेल यू व्हाट इज़ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, कॉलोनी स्टैंड्स फॉर व्हेन अ कंट्रीज इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय अनदर कंट्री। जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, ओके, जब वहाँ की प्रॉपर्टी, ठीक है, वहाँ का रिसोर्स, साथ ही साथ में वहाँ की शासन व्यवस्था किसी दूसरे राज्य या दूसरे आदेश के अंतर्गत चला जाता है, उसके अधिकार में चला जाता है, तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, उस देश को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ठीक है, जैसे ये कोई कंट्री ए है। ओके, देयर इज़ ए कंट्री ए एंड इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय अनदर कंट्री बी। ओके, इस देश की यानी कंट्री ए की जो भी इकोनॉमी है, ओके, इकोनॉमी एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द कंट्री बी, सो इट विल ए विल बी कॉल्ड द कॉलोनी ऑफ बी। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, ए को हम बी की कॉलोनी बोलेंगे। सो अब ये क्या बोल रहे हैं, एंटी कॉलोनियल मोमेंट। एंटी कॉलोनियल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, कॉलोनी यानी इस उपनिवेश के विरोध में। ठीक है, जो मूवमेंट होगा उसको हम एंटी कॉलोनियल बोलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ओके, इंडिया वॉज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन and China was also colony of Britain. So when any moment occurred or took place in India or Africa, China or South America, then the movements were called the anti-colonial movements. Okay, against the Britishers. So the anti-colonial movements also led to the ideas that were innovative and original. Okay, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th centuries. Okay, now moving forwards, let's have a look over the initiation of the revolution in France. How all this happened, means how these terms that we talk about today, the equality, okay, equality, freedom and liberty came from. Okay, so see here, स्टोरी ऑफ 14 जुलाई 1789। इस डेट पर कोई एक ऐसी घटना हुई थी जहाँ से इन तीनों टर्म्स की शुरुआत होती है, जिसको हम इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी बोलते हैं। ओके, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, जैसे भी आप इनको याद कर सकें, दीज आर थ्री बेसिक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देखिए, इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं की जाती थी कहीं पर कोई स्वतंत्र है या फिर किसी के पास में बराबरी या समानता का अधिकार है या फिर वो उन्मुक्त है, ऐसा कुछ भी नहीं था।
शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांस से होती है। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, मैं आपको बता दूँ। फ्रांस इज़ एन यूरोपियन कंट्री, ओके, इज़ अ यूरोपियन कंट्री, यूरोप, okay, Europe as a continent, okay, and the capital of France is Paris. Is that clear? So in France, the revolution broke out on 14th July 1789. Okay, why the revolt has broke out there, had broke out there, we will discuss here in details. Okay, so see here what had happened there at on 14th of July 1789. See here. On morning 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. What does it mean? Means there had been a fear, okay, or threat arised in the minds of the people in Paris. क्या होता है कि 14 जुलाई 1789 को वहाँ के लोगों में, यानी कि पेरिस में जो लोग थे उनके दिमाग में एक दहशत की भावना थी। लोग डरे हुए थे काफ़ी। किसको लेकर के, किस बात को लेकर के? द किंग हैड ऑर्डर्ड, ओके, द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, ओके। ये लोग डरे हुए थे, साथ ही साथ में ये लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए भी थे, ओके। मीन्स दे वेर मोस्ट एक्साइटेड ऑल्सो। फॉर व्हाट? द किंग हैड commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open the fire upon the citizens. देखिए क्या हुआ था, वहाँ के लोग डरे हुए तो बहुत ज़्यादा थे, साथ ही साथ में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे। किस बात को लेकर के? तो उनको ऐसा सुनने में आया था कि जो वहाँ का राजा है, ठीक है, उसने ट्रूप्स मीन्स सेना, ओके, ट्रूप्स मीन्स सेना, ग्रुप ऑफ आर्मी, ओके, इन लोगों को राज्य में यानी कि शहर में जाने के लिए उसने कह रखा था। साथ ही साथ में क्या, र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन द फायर ऑन द सिटीजन्स। और ये भी अफवाह फैल चुकी थी कि वो क्या करने वाला है, लोगों आर्मी से बोलने वाला है कि लोगों पर वो फायरिंग शुरू कर दे। इज दैट क्लियर? सो दिस वॉज द प्रॉब्लम देयर, सो पीपल हैव बीन इन अलार्म, ओके। The next thing, some 17,000 men and women gathered in front of the town hall. Okay, some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. ठीक है, इतने सारे लोगों ने, 7,000 आदमी औरतों ने क्या किया, उन लोगों ने वहाँ का जो टाउन हॉल था वहाँ पर इकट्ठे होकर के क्या डिसाइड किया, लोगों की एक सेना बनाने के लिए। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों की एक सेना बना लेंगे। ठीक है, मिलिटिया मीन्स सेना। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ अलार्म आर्म्स। ओके, और लोगों ने क्या किया, अपने आप को सेना के रूप में बना करके उन लोगों ने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी सबको उन्होंने तोड़ डाला, उनको नष्ट कर दिया। किस लिए? इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार पाने के लिए। ठीक है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग थी, सरकारी भवन थे, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ डाला हथियार पाने के लिए, जिससे कि वो जो ये सेना है ना, जो उन पर फायर करने वाली थी, उससे वो सामना कर सकें। ओके, सो दैट दे कुड फेस टू द ट्रूप दैट हैड बीन कमांडेड बाय द किंग टू ओपन द फायर ऑन द सिटीजन्स। ओके, now moving towards the next here, finally a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. Okay, उन्होंने क्या किया, सैकड़ों लोगों ने ग्रुप में, जो ईस्टर्न पार्ट था शहर का, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द शहर सिटी, ओके, उन्होंने क्या किया, मार्च किया, और वहाँ पर जाकर के जितने भी किले या फिर जेल थे उन सभी को उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। बेस्टाइल एक प्लेस था जहाँ पर रॉयल फैमिली रहती थी, ओके। वेयर द होप टू फाइंड द होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ उनको लगता था कि वहाँ पर लार्ज स्केल पर वहाँ पर क्या मिलेंगे, हथियार मिल जाएंगे, ठीक है, वेपन्स मिल जाएंगे, उन्होंने उसको क्या किया, पूरी तरह से तोड़ दिया। इज दैट क्लियर? दे आर द आर्म्ड इन द आर्म्ड फाइट द दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड। ठीक है, और बेस्टाइल का जो कमांडर था वो उसको मार दिया जाता है। ठीक है, आर्म फाइट मीन्स ये जो हथियार लेकर के लोग एक दूसरे से
फाइटिंग कर रहे थे। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड, ओके, और जो प्रिजनर थे, जितने भी कैदी थे, उन सभी को छुड़ा लिया जाता है। देखिए क्या हुआ कि जब वहाँ पर लोगों को ऐसा महसूस होने लग गया कि राजा उनको आदेश देने वाला है कि जो सेना होगी वो लोगों पर अटैक करेगी, ऐसा वहाँ पर अफवाह फैल चुका था। ठीक है, लोग काफ़ी गुस्से में होते हैं। उन्होंने एक आर्मी बनाती, वो लोग क्या करते हैं, 7,000 लोग करीब करीब मिल करके एक आर्मी बनाते हैं। ठीक है, एक सेना बनाते हैं, अपने आप को सेना के रूप में गठित करते हैं। देन आफ्टर वे बैस्टाइल, ठीक है, जो एक रॉयल फैमिली के रहने का प्लेस था, यानी उसके साथ साथ में जो किले थे, प्रिजन्स थे, उन सभी को वो तोड़ देते हैं। किस लिए? ताकि उनको ढेर सारा हथियार मिल जाए। ठीक है, टू फाइंड हार्ड एम्यूनिशंस, उनको ढेर सारा हथियार मिल जाए और वो आर्मी से क्या कर सकें, सामना कर सकें। ओके, अगेन येट बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई आल, ठीक है, उसको हर कोई घृणा करता था उससे। ओके, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्या बताया गया, बेस्टाइल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर रॉयल फैमिली रहा करती थी। इज दैट, देखिए बेस्टाइल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर रॉयल फैमिली रहा करती थी। ठीक है, इसलिए हर कोई उससे नफरत करता था। दैट इफ द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाई आल, हर कोई उससे घृणा करता था। कि द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर kept and sold to the market to those who wish to keep a souvenir of its destruction। ठीक है, क्या होता है कि जो किले थे, ठीक है, किले मीन्स राजभवन, उनको तोड़ दिया था, पूरी तरह से नष्ट किया था, और उसके जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे ना, उनको मार्केट में बेच दिया था। दे वर सोल्ड टू द मार्केट्स एंड टू दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जो लोग इसकी एक याद के रूप में इसे रखना चाहते थे ना, उसकी एक मेमोरी रखना चाहते थे, उन लोगों को इसे बेच दिया जाता है, जो किले थे उनके सारे पत्थरों को तोड़ने के बाद से। ठीक है, आगे देखिए। द डेज दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, वो पेरिस में यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी, और देश के दूसरे भी जगहों पर इस तरह से बहुत सारे दंगे होते हैं, धरने होते हैं। राइट्स मीन्स दंगा। ठीक है, दंगा करना, जब सरकार के खिलाफ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के क्या करें, दंगे करने लग जाएं। ठीक है, धरना करने लग जाएं, दंगा करना। ओके, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई। अब ये सब हो क्यों रहा था, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज हियर, व्हाई ऑल दिस वाज हैपनिंग, द ओनली रीजन बिहाइंड इट वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज द रीजन दैट हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ओके, सबसे पहला यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मुख्य कारण था, वो था हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड का। मतलब वहाँ पर जो खाने पीने के सामान थे वो बहुत ही महंगे हो चुके थे, और लोग उसी के खिलाफ में धरने कर रहे थे। ठीक है, आपको पता है, द कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। ओके, सरकार के हाथ में होता है कि कोई भी सामान कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा। क्योंकि वो समय तो क्या था, वो मोनर्की थी। ओके, मोनर्की, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, हमने पहले ही बताया कि वहाँ पर मोनार्की थी, यानी राजशाही था, राजतंत्र था, वहाँ पर राजा का शासन था। तो राजा ही रिस्पॉन्सिबल था किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, चाहे वो प्राइस हो या कुछ भी हो। ठीक है, इसलिए लोग वहाँ पर धरने कर रहे थे। ओके, क्योंकि उनको कोई भी सामान परचेज करने में समस्या हो रही थी। जैसे कि आज के डेट में भी आप देख सकते हैं, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ टूडेज, ओके, योर लाइफ, दैट टुडे द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, बहुत तेज़ी से कॉस्ट बढ़ी जा रही है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो या फिर और भी कोई सामान हो। ठीक है, बेसिक नीड्स के गुड्स हो, ये सभी, इन सभी की जो कॉस्ट है ना, रैपिडली इंक्रीज कर रही है। सो दैट पीपल्स आर फेसिंग ट्रबल एंड प्रॉब्लम्स टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। ओके, इस तरह से लोगों को समस्या हो रही है। वहाँ पर भी, उस टाइम पर भी, यानी 18th सेंचुरी में भी क्या था, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रॉब्लम की वजह से लोग क्या कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में यानी राजा के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे थे, दंगे कर रहे थे वो। ओके, और उन दंगों को शांत करने के लिए जो वहाँ का राजा था, उसने अपने सैनिकों को आदेश दे रखा था कि वो शहर में जाएं, और शहर में जा करके अगर वहाँ दंगे कुछ हो रहे हैं तो उनको वो शांत कराएं या फिर उसको रोकें। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जितने भी सरकारी बिल्डिंग थे, सरकारी खजाने थे, उनको लूट लिया, उसको तोड़ दिया उन्होंने। और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, सेनाओं से सामना भी किया। ओके, और ऐसे दंगे पूरे देश में हो रहे थे। चलिए आगे देखिए। मच लेटर वन हिस्टोरियन लुक बैक,
Upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king। ठीक है, और जब इतिहासकारों ने देखा इसको ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रमिक घटनाएं होती हैं, श्रृंखलाबद्ध घटनाएं होती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, जो वहाँ का राजा था, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन द फ्रांस, वहाँ का जो राजा था उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। ओके, उसे लटका दिया जाता है, उसको उसको फांसी दी जाती है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। ठीक है, यदि बहुत सारे लोग इस परिणाम से सहमत नहीं है कि हाँ ऐसा रियल में होता है, या फिर मीन्स उस उन सारी घटनाओं का परिणाम यही था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं। द मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस एक्सेप्ट दैट दिस वॉज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, एंड इट ऑल्सो लेड टू द बिगिनिंग ऑफ these three terms that were the equality, freedom and liberty। okay, so this story is very interesting, so let's have a look forward upon the story। how all how did all this happen, ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, let's have a look over it। so first of all I would like to tell you, देखिए अभी तो हम लोगों ने बात की कि वहाँ पर क्या हुआ, दंगा हुआ राजा के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में, और साथ ही साथ में उसका परिणाम क्या होता है कि जो वहाँ का राजा था, वहाँ का जो किंग था, उसको हैंग कर दिया गया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। अब ये सारा कुछ हुआ क्यों था, ड्यू टू राइट्स। ओके, जो वहाँ पर दंगे हो रहे थे, और वो राइट्स क्यों हो रहे थे, ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ इंक्रीज प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ओके, तो इन सब की वजह से हुआ। अब हम रियल में बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक रियली अबाउट द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस, हाउ द सोसाइटी ऑफ फ्रांस स्टैंड, and what were the administrative system of France, and what led to the rapid increase of prices of bread। okay, so we will discuss here in details। okay, so see, France, uh, first of all let's have a look over the French society। okay, means how the society of France was divided। okay, in Indian society there stand four categories। okay, what are the four categories in Indian society? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, दैट विच कॉल्ड द वर्ण। इनको हम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इनको बोल सकते हैं इन दिस वे, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। okay, so this is the division of the society on the basis of the caste। okay, that we call वर्ण in हिंदी। okay, जाति प्रथा इसको बोलते हैं हम, वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। ये भारतीय समाज में ऐसा पाया जाता है। और फ्रांस में क्या था, वहाँ के समाज को किस तरह से डिवाइड किया गया था, उसको देखिए, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। इन फ्रांस देयर स्टैंड थ्री स्टेट्स। व्हाट वर दीज थ्री स्टेट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। ओके, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, एंड इन लास्ट द थर्ड स्टेट। ओके, क्लर्गी, क्लर्गी was the first state। okay, nobility, what I am saying, nobility, nobility was the second state, and third state stand for the group of the people that included the businessmen, merchants, court official, liars, peasants, artists, small peasants, laborers, etc। ओके, ये सभी थर्ड स्टेट में आया करते थे। देखिए इनको और डिटेल्स में बता दूँ कौन कौन। क्लर्गी उनको बोलते थे द पीपल हु वर्क इन द चर्च। ठीक है, जो चर्च में काम किया करते थे, जो चर्च के पुजारी और ये सारे लोग हुआ करते थे, उनको हम क्लर्गी बोलते हैं। ओके, दे वर कॉल्ड एज क्लर्गी। सेकेंड स्टेट, नोबेलिटी, नोबेलिटी मीन्स द रॉयल फैमिली। ओके, द फैमिली दैट बिलोंग टू द कोर्ट और द किंग। ठीक है, इनको हम नोबेलिटी बोलते हैं। थर्ड स्टेट में वे सारे छोटे लोग, चाहे वो बिजनेस पीपल हो, मर्चेंट्स हो, लायर ऑफिशियल्स हो, या फिर आपके छोटे किसान हो, लेबरर्स हो, लैंडलेस सर्वेंट्स हो, ये सभी थर्ड स्टेट में आया करते थे। okay, so I hope you all have get all the points very sincerely। make the revision, and we will continue the story in the next video। thanks for watching, and please make like, subscribe and share the channel among your friends for better studies of you all, and
हैव अ गुड डे। थैंक यू।